Hello students, now let us start with the election system in democracy. In last class, we completed types of democracy, parliamentary and presidential. As you all know, parliamentary, that India have Lok Sabha and Rajya Sabha, in which the parliaments is being elected by the voters directly or indirectly. Okay, it can be the ministers, the MLAs, the cabinet ministers, prime ministers, fine. And presidential is where all the presidents are elected directly by the voter and with two-party system. It can be USA, Argentina, Brazil, and so many other countries which are having presidential types of democracy. Now today we'll start with election system in democracy. Talking about the election system, see, as you all know, India have the second largest population and we have innumerable population and voters list. So the elections, it can be for the Lok Sabha or Vidhan Sabha are held, which are held regularly after every 5 years, and elections are held in all constituencies at the same time, and these are called general elections. So for general elections are being held. Okay, so every 5 years we are supposed to cast our vote. Now which body is responsible for conducting the election? कौन है जो elections free and fair manner में you can tell that are handling the election? Because for an election it should be an independent, impartial and autonomous body like judiciary, and because nobody can get to know what is or how the voting system or to whom we are casting our vote, so it is very much necessary to maintain the secrecy level, and for that the government which is responsible for conducting election is the Election Commission of India. Okay, जिसको निर्वाचन सदन या भारत निर्वाचन आयोग भी बोलते हैं. Okay, so this is a symbol which I have attached to it. अब इलेक्शन कमीशन ये बॉडी किससे बनती है? ऑर्गन, व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ इलेक्शन कमीशन? इन इंडिया elections are conducted by an independent and powerful autonomous election commission. It enjoys the same kind of independence that judiciary enjoys, but once appointed the election commission is not answerable to the president of the government. See students, the third point कि एक बार इलेक्शन कमीशन की बॉडी पूरी बन जाए, I mean the persons are elected as an election commissioner, okay, they are not at all answerable to president, क्योंकि president को एक पार्टी से बिलोंग करता है और इलेक्शन के लिए कोई भी पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट होना इम्पॉर्टेंट नहीं है. दे आर इम्पार्शियल. ओके, सो दैट इज़ द रीज़न कि वो पूरी ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, एंड इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर ये ध्यान रखते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर वे में कंडक्ट हो. It consists of chief election commissioner and some other members, and they are appointed by the President of India. Their terms and conditions of service are determined by the Parliament. Parliament सिर्फ ये डिस्कस करती है. क्यों Parliament? क्योंकि Parliament में सारी पार्टीज़ जो है, ओके, ना तो सिर्फ रूलिंग पार्टी होगी बट सारी पार्टीज़ का इंक्लूजन पार्लियामेंट में होता है. सो दैट इज़ द रीज़न कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो भी डिस्कशन अगर करना है वो पार्लियामेंट में डिस्कस होगा. It is a powerful body which conducts election in our country. It implements the code of conduct and punish any candidate or party that violates it. अगर नरेंद्र मोदी जो है, इफ़ एट ऑल भले ही वो प्राइम मिनिस्टर है, पर फिर भी अगर इलेक्शंस के वक्त किसी ने भी कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक किया, रूल्स एंड रेगुलेशन इलेक्शन कमिश्नर ने जो बनाए हैं, ओके, उसको ब्रेक किया तो वो किसी को भी पनिश कर सकते हैं, भले वो क्यों प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो. ओके, वो इतनी फ्री एंड इम्पार्शियल वे में इलेक्शन कंडक्ट करते हैं.
जो कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसके ऊपर नहीं रहता। नेक्स्ट इज देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इलेक्शंस। फर्स्ट इज जनरल इलेक्शन, नेक्स्ट इज मिड टर्म इलेक्शन एंड थर्ड इज बाई इलेक्शंस। जनरल इलेक्शंस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, और अगर इन बिटवीन मिड टर्म इलेक्शंस करने हैं तो वो पार्लियामेंट में डिस्कस करने के बाद इलेक्शंस होंगे। एंड बाई इलेक्शन, स्टूडेंट्स प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर व्हाट इज़ बाई इलेक्शन। द इलेक्शन that are carried out to elect a new candidate to fill up a vacant place due to death or resignation of the candidate is known as by-election. ओके, सो बाई इलेक्शन कब कंडक्ट होते हैं? जब कोई रिज़ाइन करके बीच में से चला जाए या तो किसी की डेथ हो जाए, तब बाई इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है। प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर इट। नाउ जैसे हमने आगे डिस्कस किया कि इलेक्शन कमीशन एक कोई बॉडी है जो इलेक्शन का ध्यान रखती है, तो दीज आर द स्टेप्स जो इलेक्शंस के अंदर इंक्लूड होते हैं। पहले तो नॉमिनेशन होता है कैंडिडेट्स का, फिर कैंपेनिंग। वो लोग नॉमिनेशन मतलब वो अपना नाम सबमिट करते हैं इलेक्शन कमिश्नर को कि भाई हम कैंडिडेट वी आर स्टैंडिंग फ्रॉम दिस XYZ पार्टी एंड वी विल बी कंडक्टिंग, या आई विल बी द नॉमिनी ऑफ दैट प्लेस, कि मैं यहाँ से आई एम द पर्सन हु इज स्टैंडिंग फॉर एन इलेक्शन। फिर उसके बाद वो लोग कैंपेनिंग करते हैं, फिर पोलिंग इन द सेंस का इलेक्शन होता है, और फिर बाद में काउंटिंग होती है। आई हैव अटैच्ड अ फोटोग्राफ कि भाई वो अपना नाम सबमिट करने के लिए जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर उन लोगों के टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना होता है, साइन करनी होती है। फाइन। अब प्रोसेस ऑफ इलेक्शन जैसे हमने आगे डिस्कस किया, फिर नॉमिनेशन के बाद कैंपेनिंग करते हैं। द कैंपेन मैनेजर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कंडक्ट ओपिनियन पोल्स। द इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर्स अ शेड्यूल फॉर इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन एक प्रोटोकॉल रखते हैं कि भाई आपको इसी टाइम पे एक ऑफिशियल प्रोसीजर जिसको बोलते हैं, इसको कोड ऑफ कंडक्ट भी बोला जाता है, कि भाई आपको इसी प्रकार से कैंपेनिंग करनी है। ओके, comes the code of conduct prescribed by the election commission comes into forces as the dates are declared. elections की dates declare करने के पहले कैंपेनिंग करते हैं, और वो भी किस प्रकार से होगा तो वो भी आपको इलेक्शन कमिश्नर बताएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज किक ऑफ देयर कैंपेनिंग व्हेन द पोल डेट्स आर अनाउंस। किक ऑफ ओवर हेयर, ज़ोरों शोरों से चिल्ला के ढोल नगाड़े के साथ बताते हैं आपको कि भाई ये दिन इलेक्शन है, इसको वोट करना है, कौन सी पार्टी को वोट करना है, XYZ, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं वो लोग। एन अरेंजमेंट सिर्फ आफ्टर कैंपेनिंग इलेक्शंस होते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ सिटीजन्स टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव इज नोन एज इलेक्शन। सो कैंपेनिंग के बाद एक डेट इलेक्शन कमिश्नर हमें देते हैं कि ये दिन इलेक्शन डे होगा, तो उस वक्त हम इलेक्शन करने के लिए जाएंगे। एंड दैट इज़ हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड, जहाँ पर पार्टीज़ अपने मैनिफेस्टोज हमें बताती है कि भाई हमारे ये एथिक्स है, ये इंटेंशंस है, हम ये करेंगे वो करेंगे, फॉरेन पॉलिसीज़, डिफेंस, जो भी उन लोगों को करना है वो हमें कैंपेनिंग के वक्त बताएंगे, और इलेक्शन के दिन हम उसको वोट देंगे ना। वोटिंग सिस्टम जो है जिसको हम सीक्रेट बैलेट बोलते हैं, सीक्रेट इन द सेंस कि किसी को पता ना चले, तो सीक्रेट बैलेट कंडक्ट होता है। क्योंकि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, आई कैन कास्ट माई वोट टू एनी पर्सन टू whom आई वॉन्ट टू। फाइन। देर आर बेसिकली 2 types of secret ballot या elections conducted. First is secret ballot system and second is electronic voting machine, जिसको EVM भी बोलते हैं। ओके, सो ये जो है वो पहले सीक्रेट बैलेट यूज़ करते थे, जो अभी यूज़ में नहीं है। द रीज़न इज़ बैलेट पेपर यूज़ करने का मतलब कोई नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, पेपर वेस्ट होते हैं, उसके बाद फिर काउंटिंग करने के लिए भी एक बहुत ही समय लगता है, टाइम एंड लेबर बहुत ज़्यादा लगता है। सो दैट इज़ हाउ सीक्रेट बैलेट अब यूज़ नहीं करते। दीज आर द रीजन्स। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गया है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको एक बेसिकली
इट इज़ अ वेरी गुड सिस्टम जो बहुत ही लेस टाइम कंज्यूमिंग है. ओके, और पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक है. एंड इट इज़ मच मोर सीक्रेट लेवल भी यहाँ पर मेंटेन होते हैं. यू कैन सी ओवर हियर, दीज आर द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट. यहाँ पर उनका वो कैंडिडेट कौन सी पार्टी है उनका सिंबल रखा जाता है. एंड वी आर सपोज टू कास्ट द वोट ओवर हियर. फाइन. क्योंकि अगर कोई भी इलिटरेट लोग हैं तो वो अगर पढ़ नहीं पाते तो यहाँ पर वो लोग देख भी सकते हैं कि भाई कौन सा सिंबल है और मुझे किसको वोट देना है. फाइन. तो आफ्टर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बाद एवरीथिंग इज पैक्ड एंड सील्ड कि जब भी इलेक्शन कमीशन काउंटिंग की डेट्स दे, देन द सील्स आर ओपन एंड वोट्स आर बीइंग काउंट. वन मोर थिंग ओवर हियर इन द ईवीएम, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग है, इको फ्रेंडली है और बार बार इसको हर वक्त हम इसको यूज़ कर सकते हैं ये मशीन को. ओके, ईवीएम्स को. एंड दीज ईवीएम्स आर वेरी यूज़र फ्रेंडली, बहुत यूज़र फ्रेंडली भी है. एंड वन मोर थिंग ओवर हियर इज़ नोटा, विच इज़ अ न्यू टॉपिक फॉर यू. अगर if at all I am not satisfied with any of the party, I don't want to cast my vote to any of these persons, what I will do is I will just click over here in the nota section. Now what is nota? It is none of the above. If I do not want to cast my vote in any of the favor, okay, so ये मेरी राइट है, ये हक है मेरा. हाँ, मैंने वोटिंग जो इलेक्शन है मैंने वोट तो मेरा दे दिया, बट मेरे एरिया से जो भी लोग खड़े हैं, आई डोंट वांट टू कास्ट वोट फॉर एनी XYZ रीजन्स, तो आई विल जस्ट क्लिक दिस नोटा बटन, दैट इज़ नन ऑफ द अबव. तो ये एक टॉपिक है जो आपको याद रखना है. इट इज़ इवन देयर इन योर टेक्स्ट बुक, सो प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर इट. और जब भी इलेक्शन होता है, वोटर हैज़ टू मेंटेन द सीक्रेसी. अगर मुझे ईवीएम का भी उपयोग करना है तो भी मुझे एक सीक्रेसी लेवल होती है. ओके, आई हैव जस्ट शोन यू द पिक्चर ओवर हियर कि भाई यहाँ पर एक ये सीक्रेट बैलेट है, पर यहाँ पर वोटिंग मशीन प्लेस कर देते हैं कि नोबडी कैन सी मी टू होम आई एम वोटिंग इट. तो ये आपको ध्यान रखना है. एंड विदाउट एनी ग्रीड और फियर, किसी के दबाव में आके मुझे वोट नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है. ओके, एंड दीज सीक्रेसी जो है वो मेंटेन होती है. एंड आई कैन कास्ट माई वोट्स टू हूसोएवर आई एम सेटिस्फाइड विथ. अगर कैंपेनिंग के वक्त जिन्होंने अपने आइडियाज़, फ्यूचर प्लान्स जो भी है, आई एम सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ द पर्सन्स, आई विल कास्ट देयर वोट. और वोटिंग के वक्त पूरा बंदोबस्त रहता है, पुलिस वगैरह जो भी है, इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं इन द सेंस कि उनके ऑफिसर्स वगैरह. तो विदाउट एनी फियर आई कैन कास्ट माई वोट. फाइन. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज़. जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है. 1 पार्टी, 2 पार्टी एंड मल्टी पार्टी. एक पार्टी होती है कोई जगह पे, जैसे कि चाइना है. 2 पार्टी होती है जैसे कि अमेरिका है, दे हैव 2 पार्टी सिस्टम. एंड इंडिया है मल्टी पार्टी सिस्टम कि बहुत सारी पार्टीज़ है और जिसको मुझे वोट देना है, आई एम अलाउड टू वोट. स्पेशल क्राइटेरियाज आर फिक्स्ड बाय द इलेक्शन कमीशन टू वैलिडेट एनी पॉलिटिकल पार्टी. अगर पॉलिटिकल पार्टी को अगर बनना है, आना है, तो उसके लिए क्राइटेरियाज इलेक्शन कमिश्नर ही डिसाइड करते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी को कंप्लीट करना है. पॉलिटिकल पार्टीज़ आर क्लासिफाइड आइदर इनटू नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी. नेशनल पार्टी हम आगे डिस्कस करेंगे कि पूरे नेशन में वर्कआउट करेंगे, पर उसके लिए भी मुझे क्या करना है. रीजनल पार्टी मेरे रीजन से मैं आई विल बी फाइटिंग इट on a certain specific policies and criterias decided by the election commission. ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है हु आर द इलेक्शन कमीशन बॉडी. नेशनल पार्टी क्या है? अगर पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6%, आपकी टेक्स्ट बुक में 4% है, ऑफ द टोटल वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शन एंड विन्स एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा are recognized as the national party.
अगर कोई भी पार्टी लोकसभा में एटलीस्ट 6% लेके आए तो वो लोग नेशनल पार्टी में आ सकते हैं. बेसिकली देर आर 6 नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इन आवर कंट्री. इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट that is CPIM, and Communist Party of India. These are the parties that are basically called as national party. Okay, based on specific criteria, any national party can lose its status for any regional party and can gain the status of the national party depending on the number of votes obtained by that party. अगर रीजनल पार्टी एक परसेंटेज के साथ जीत जाए तो वो नेशनल पार्टी में आ सकती है. फाइन, तो इतना याद रखना प्लीज़. नाउ लेट मी गिव यू द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्टी एंड रीजनल पार्टी. या तो कोई स्टेट पार्टी हो सकती है. नेशनल पार्टी एज यू नो कि पूरे नेशन में होगा, और रीजनल पार्टी एक कोई रीजन से लड़ेंगे या तो कोई स्टेट से लड़ेंगे. ठीक है. A party that secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha elections or assembly elections in 4 states. स्टूडेंट्स याद रखना, अगर 4 स्टेट्स के अंदर मैंने जीत हासिल कर ली इन द लोक सभा रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल पार्टी. बात करें तो रीजनल पार्टी की, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन बाय टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट. मतलब स्टेट के अंदर अगर जीत हासिल हुई है तो ही, और एटलीस्ट 2 सीट्स इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी, तो मैं स्टेट पार्टी में इन्फ्लुएंस हो सकती हूँ. नेशनल पार्टी पूरे कंट्री में वर्कआउट करेंगे, एंड इन्फ्लुएंस रीजनल पार्टी कोई एक स्टेट से होंगे या तो रीजन से होंगे, और इनका इन्फ्लुएंस पूरे कंट्री में होगा और इनका इन्फ्लुएंस एक पर्टिकुलर रीजन में होगा. ये लिमिटेड है, प्लीज़ याद रखना. दे डील विद नेशनल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़, and regional party they are concerned with problems and demands of a particular region or state only. कोई भी डिमांड होगी वो अपने स्टेट तक ही सीमित रहेंगे. Their activities give priority to the national problems over the regional issues, and their activities are restricted to the region or the state only in which they are functioning. ओके, जो भी कोई XYZ पार्टी गुजरात से है तो दैट आर रीजनल पार्टी, तो वो अपने रीजन का ही डेवलपमेंट करेंगे. यहाँ पर पूरे नेशनल लेवल पे होगा. फाइन. एग्जाम्पल्स आर कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो ऑलरेडी हमने आगे डिस्कस कर लिया. एग्जाम्पल्स ऑफ रीजनल पार्टी आर शिरोमणि अकाली दल, मिजो नेशनल फ्रंट, झारखंड मुक्ति मोर्चा. तो दीज आर काइंड ऑफ which are only working in a proper region only or a particular state. Okay, please students ये याद रखना. अब इलेक्शंस के बाद जो भी पार्टी जीतेंगी तो दे विल बी नोन एज रूलिंग पार्टी, और जो भी पार्टी हारेंगी वो ओपोजिशन पार्टी में आएगी. ओके. The party forming the government is known as the ruling party, and the party which forms the opposition is called the opposition party. Fine, please students याद रखना. अब opposition party का रोल क्या है students? See, opposition, the word comes oppose करना, आवाज़ उठाना. रूलिंग पार्टी ने जो भी प्रोमिसेस किए थे कैंपेनिंग के वक्त, इलेक्शंस के वक्त, तो अगर वो कंप्लीट ना करे तो उसको याद कौन दिलाएगा? ओपोजिशन पार्टी. तो ओपोजिशन पार्टी आर वेरी मच नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ओके, बिकॉज दे हेल्प्स टू रिमेंबर. सी फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे तो राहुल गांधी मोदी जी को बार बार कुछ ना कुछ याद दिलाते रहते हैं कि आपने ये बोला था तो क्यों नहीं किया. तो ये याद दिलाने का काम ओपोजिशन पार्टी का है. ओके, कहने का मतलब तो ही एक जो भी पार्टी गवर्नमेंट में है, एंड दे विल बी वर्किंग इट प्रॉपरली. द ओपोजिशन पार्टी हेल्प्स इन helps to form public opinion by democratic laws and opposing the objectionable plans and policies of the government. Students, please try to remember, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन अगर मुझे देने भी है तो उसकी आवाज़ ओपोजिशन पार्टी उठा सकती है
कि गवर्नमेंट ने ये बोला था तो नहीं किया. तो these are the public opinions that will be raised by the opposition party. But in a healthy democracy, it is desirable that the opposition party supports the social and public causes of the ruling party which are aimed at the welfare of the nation. इतना याद रखना है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कोई भी पार्टी के बीच में, बिकॉज ये सिर्फ वेलफेयर के लिए है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए ओपोजिशन पार्टी कैन रेज द वॉइस, ओके, एंड इट कैन बी सोशल एंड पब्लिक causes. So students, please try to remember, they raise their voice just for the public development. See, democracy is like a chariot. Chariot already हमने डिस्कस कर लिया, chariot रथ बोला जाता है. रूलिंग पार्टी एंड ओपोजिशन पार्टी आर द टू व्हील्स ऑफ द चैरियट. ओके, एक रूलिंग पार्टी और दूसरा ओपोजिशन पार्टी. आगे कंट्री होगी और इन दोनों पहिए को चलाता गवर्नमेंट है, ओके, कंट्री है. द रीज़न इज दे विल बी वर्किंग साइमल्टेनियसली, साथ साथ चलेंगे. ओपोजिशन पार्टी आवाज़ उठाएंगे, कॉजेज़ बताएंगे कि ये कंप्लीट करना है, एंड द रूलिंग पार्टी कैन कंप्लीट दैट. सो डेमोक्रेसी इज़ लाइक अ चैरियट. फाइन. The success of democracy depends on the balanced relationship between the ruling party and the opposition party. कोई भी कंट्री तभी वर्कआउट कर सकती है प्रॉपरली when the both ruling and opposition party works properly. Effective and strong opposition party is a prerequisite of a good democracy. opposition party का होना बहुत ही ज़रूरी है. क्यों? बिकॉज तो ही रूलिंग पार्टी को पता चलेगा कि भाई मुझे क्या करना है और क्या बाकी है. सो दे इट कैन बी इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन पार्टी. नाउ देयर वर 2 points which I wanted to discuss from your textbook. मैनिफेस्टो. मैनिफेस्टो एक वर्ड है जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया. इलेक्शन कमिश्नर के वक्त अगर मुझे सबमिट करना है कि भाई आई विल बी स्टैंडिंग फ्रॉम दिस XYZ पार्टी, तो मुझे एक मैनिफेस्टो देना होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि भाई एक स्टेटमेंट होता है कि भाई मेरा इंटेंशंस क्या है, पब्लिकली मुझे बताना है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. अ रिटर्न स्टेटमेंट बाय अ पॉलिटिकल पार्टी दैट एक्सप्लेन्स व्हाट इट होप्स टू डू if it becomes the government in future, or a statement declaring in public the intentions and the aims and the goal that the party would complete if they come into the rule for the government. अगर गवर्नमेंट बनी, रूल में आए, रूलिंग पार्टी हुई, तो मेरा एम्स क्या होंगे, मेरे इंटेंशंस क्या होंगे फॉर द पब्लिक वेलफेयर, इकोनॉमिक, फॉरेन पॉलिसी, प्रपोज्ड प्लान है. ओके, तो दैट इज़ मैनिफेस्टो. एक प्रोटोकॉल, कोड ऑफ कंडक्ट मैंने आपको आगे बताया था कि भाई इलेक्शन कमिश्नर आपको बताते हैं कि आपका ये प्रोटोकॉल होगा कि आपको किस प्रकार से कैंपेनिंग वगैरह जो भी करना है. तो इट इज़ ऑफिशियल प्रोसीजर ओवर हियर declared by the election commission mentioning the campaigning up of when to start and end up to the different parties, and the parties are bound to follow that protocol declared by the election commissioner. एक ऑफिशियल प्रोसीजर होती है, ओके, कि भाई आपको ये वक्त पे कैंपेनिंग कंप्लीट कर देना है, इस दौरान आपको कैंपेनिंग करना है, एंड सो मेनी अदर प्रोटोकॉल्स आर बीन डिस्कस्ड by the election commissioner to the political parties. Fine. I hope students you are clear with the topic, and if at all any doubt, we'll be covering in the class itself. Fine. Thank you students.